Good morning, students. Hello, children. How are you? I hope you all are fit and fine. Be safe at your home. Now, take out chapter number 3. Was it a dream? Chapter number 3. See, children, this is fishing rod. So, children, draw this fishing rod in your fair notebook and color it also. Understand? Now, take out page number 25. Answer these questions. Okay, children? Do all these question answer in your fair notebook. Okay, now what were Rita and Frank doing beside the stream? What were Rita and Frank doing beside the stream? Rita was gathering flower. Gathering it means collect. कोई flowers collect कर रही थी. And in the wood, Rita was gathering flowers in the wood. Wood, what is the meaning of wood? An area of a trees जहाँ पे बहुत सारे trees होते हैं. It means in another word we may say that forest. Okay. Rita was gathering flowers. Rita क्या collect कर रही थी? Flowers. For कहाँ से कर रही थी? Wood से. Understand? Rita was gathering flowers in the wood while her brother और उसका भाई Frank sat by the stream with his fishing rod. और जो उसका भाई था Frank sat by the stream with his fishing rod. किसके साथ था? स्ट्रीम के सेट बाय द स्ट्रीम विद हिज फिशिंग रॉड. किसके साथ था? फिशिंग रॉड के साथ था. ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी. रीता वॉज गैदरिंग फ्लावर्स इन द वूड वाइल हर ब्रदर्स फ्रैंक सेट बाय द स्ट्रीम. स्ट्रीम के साइड में बैठा था, वो भी किसके साथ? फिशिंग रॉड के साथ. अंडरस्टैंड? हाउ कुड रीता सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम? How could Rita see the bottom of the stream? What did she see here? What did she see there? क्या देखा उसने? रीता ले डाउन बाय द स्ट्रीम. जो स्ट्रीम था उसके साइड में वो बैठ ले इट मीन्स लेटना. वहाँ लेट के वो क्या देख रही थी? एंड कुड सडनली सी. क्या देखा उसने? द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. शी सॉ अ स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश मतलब वहाँ पे उसने कुछ मछलियों का झुंड देखा. स्विमिंग अबाउट. देन शी हियर्ड. और उसने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी. देन शी हियर्ड लिटिल वॉइसेस कमिंग अप फ्रॉम द वाटर. और वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द वाटर. अंडरस्टैंड? नाउ रिपीट आफ्टर मी. रीता ले डाउन बाय द स्ट्रीम एंड कुड सडनली सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. And could suddenly see the bottom of the stream. She saw a school of fish swimming about. Then she heard little voices coming up from the water. पानी में से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी. Okay. Now, question number 3 is given here. See, why did Rita not call out to the little fish? What did she want to say? Why did Rita not call out to the little fish? एंड वॉट डिड शी वॉन्ट टू से. वो क्या कहना चाह रही थी लिटिल फिश को? रीता वॉन्टेड टू कॉल आउट टू द लिटिल फिश. वो उनको क्या बताना चाह रही थी? उसको बुला के एंड टेल हिम, ये बताना चाह रही थी दैट हिज मदर वॉज राइट. उनकी मम्मा जो है वो सही कह रही हैं. बट शी वॉज नॉट श्योर इफ़ ही वुड बी एबल टू हियर हर. पर उसे ये लग रहा था कि हो सकता वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ. सो रिपीट आफ्टर मी. रीता वॉन्टेड टू कॉल आउट टू द लिटिल फिश and tell him that his mother was right, but she was not sure if he would be able to hear her. Understand? Okay, now question number 4 is given here. Why was the mother fish worried? मम्मी को उनकी जो मदर फिश थी बच्चों की, वो क्यों worried थी, क्यों चिंतित थी? The mother fish was worried because the little fish had tried to swallow the bait and was caught in the hook. Bait, what is the meaning of bait? It means food for animal. जो bait, it means the bait. What is the meaning of bait? जो animals का food होता है ना? जैसा कि हम आपको चैप्टर में समझा चुके थे. Woods, bait, food used to trap fish and other animal. Food used to trap fish, जिसको मछली पकड़ने के लिए जो food यूज़ किया जाता है और फिशिंग रॉड में फंसा के उनको डाला जाता है ना? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बेट. वॉज कॉट इन द हुक. अंडरस्टैंड? द मदर फिश वॉज वरीड. वो चिंतित थी क्योंकि बिकॉज द लिटिल फिश हैड ट्राइड टू स्वेलो. और लिटिल फिश जो थी वो जिद कर रही थी कि उसको वो बेट का फूड, जो हुक में जो बेट है, जो फूड है, वो उसे खाना है.
Okay, now repeat after me. The mother fish was worried because the little fish had tried to swallow the bait and was caught in the hook. जैसे ही वो खाने जाती है और वो हुक में क्या हो जाती है, एंड ही वॉज कॉट इन द हुक. अंडरस्टैंड? ओके. Now question 5th is given here. What made Rita laugh heartily? What made Rita laugh heartily? Rita laughed heartily when the fishing rod flew out of Frank's hand. जैसे ही फ्रैंक्स के हैंड से फिशिंग रॉड छूट जाती है, एंड ही फेल विथ अ थम्प ऑन द ग्रास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थम्प? नाउ रीता लाफ्ड हर्टली. रीता को इतनी ज़ोर से हंसी इसलिए आई थी दैट द फिशिंग रॉड फ्लू आउट ऑफ फ्रैंक्स हैंड. उसके हाथ से फिशिंग रॉड छूट गई थी, एंड ही फेल विथ अ थम्प ऑन द ग्रास. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थम्प? इट मीन्स टू फॉल ऑन द ग्राउंड विथ अ डल साउंड. धम से गिरना, है ना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ थम्प. वाइल द लिटिल फिश जम्प बैक इन टू द वाटर. और जो छोटी फिश थी जो हुक में फंस चुकी थी, वो उसमें से निकल के पानी में जा चुकी थी. द साइट वॉज सो फनी. और ये नज़ारा बहुत फ़नी था. दैट्स वाई रीता स्टार्टेड लाफिंग हार्टली. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड फ्रैंक रिफ्यूज़ टू प्ले विथ हिज सिस्टर? फ्रैंक ने उसकी बहन के साथ खेलने को क्यों मना कर दिया? फ्रैंक वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फिशिंग. फ्रैंक को मछली पकड़ने का बहुत शौक था दैन इन प्लेइंग विथ हिज सिस्टर. दिस इज इंटरनल क्वेश्चन. सो चिल्ड्रन, do it, learn and write this question answer. Okay, this is question number 6 is internal question. So children, learn this also. Okay, so children, do all this question answer in your fair notebook, and writing must be clean and writing must be clear. Okay, have a nice day.